नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो वेलकम बैक, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि अलग अलग क्लास पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्लास 9 से ऐसे ही आज हम लेके आए आज अपना एक नया टॉपिक क्लास फिर से 9 से। तो आज दोस्तों डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। आज हमारा टॉपिक कुछ रहने वाला है। टॉपिक का नाम होगा दोस्तों आयंस। आज हमारा टॉपिक का नाम रहेगा आयंस। एक्चुअली क्या होता है आयंस, व्हाट आर आयंस, हाउ कैन यू से दैट दिस इज आयंस एंड टाइप्स ऑफ आयंस। सो different we will discuss all the different topics related to ions. Okay, so now first of all the definition of ions. तो दोस्तों बिना देर के स्टार्ट कर रहे हैं। आयंस means ion are those species, ions are those species which carry a charge. Okay, or we can say that electrically charged species known as ion. Okay, means the electrically charged species known as what? Known as ions. Is it clear? If any species carry a charge, either a positive or negative, so we can say that species known as ions. Okay, for an example is the Na plus. Okay, Na plus, Fe2 plus. Okay, or we can say O2 minus, Cl minus, and Mg2 plus, Ca2 plus. There are so many examples. Al3 plus. There are so many example of what? Ions. All these are ions. Okay, all these are, ये सभी के सभी क्या है? आयंस है। जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको ही हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम आयन, आयरन आयन, ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, एंड दिस वन इज द एल्यूमिनियम आयन। सो मेनी, not only this, there are the so many examples of the ions. Okay, अब बात करेंगे हम कि ये ions एक्चुअली क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। मीन्स टाइप्स ऑफ ions actually on the basis of charge means ions are of two types. First of all is the cation and second one is the anion. First one is the cation and second one is the anion. So cations and anions, so which types of charge present on cation or which types of charge present on anion? So this is my question, that cation are those species, is it clear? Cation are those species which carry or which resemble a positive charge, means this is the cation, and cation is those species which carry a positive charge, and anion are those species which carry a negative charge. Very good, negative charge. Is it clear? So there are two types of ions. First of all, ions. What is ions? Ions are the electrically charged species. Okay, or ions are, these are the example of ions. Ions on the basis of charge, you can write also on the basis of charge. On the basis of types of ions, on the basis of charge, ions are of two types. First is the cation, second one is the anion. Anion resembles a positive charge, whereas anion resembles a negative charge. Or we can say that cations are those species which carry a positive charge, and anion are those species which carry a negative charge. For an example, writing the definition, cation means cations are those species which carry a positive charge, Is it clear? This is known as cation. And the second one is the anion. Anion means what? Anions are those species which carry a negative charge,
negative charge. Is it clear? Means first of all what? Means cations are those species which carry a positive charge and anions are those species which carry a negative charge. So how you can easily identify which one is the cation and which one is the anion? This one is the what? Cation. This one is cation. This one is anion. This one is anion. And this one is Mg2 plus positive charge, then cation. Again 2 plus, this one cation. This one also cation. Is it clear? So we can say that those species which carry a positive charge, पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव वाले हैं, ये क्या कहलाएंगे? कैटायंस कहलाएंगे. जिस पर निगेटिव चार्ज होगा देन दिस स्पीसीज नोन एज द एनायंस. इज इट क्लियर? आई होप कि समझ में आया होगा. नाउ वी विल डिस्कस ऑन द दैट टॉपिक्स हाउ वी ऑब्टेन, हाउ कैन बी ऑब्टेन द कैटायंस, हाउ इज द कैटायन फॉर्म्ड, हाउ इज द एनायन फॉर्म्ड. तो अब बात करेंगे कैटायन कैसे बनते हैं और एनायन कैसे बनते हैं, ये कैसे बनेंगे और किससे बनेंगे. चाहो तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. इफ़ यू वांट देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सिंपली है दोस्तों, अगर समझ में आता है क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा. दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इसको. आई होप कि हम आपको काफ़ी कोशिश करते हैं आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने की जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं. ओके दोस्तों. हाँ दोस्तों, बात करेंगे अब आगे कैसे बनते हैं. हाउ इज कैटायन फॉर्म्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द कैटायन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन द कैटायन. कैटायन CATION. हाउ इज कैटायन फॉर्म्ड, हाउ इज कैटायन फॉर्म्ड, दिस इज द क्वेश्चन. कैटायन कैसे बनते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी नो दैट कैटायन ऑलवेज फॉर्म्ड, मीन्स कैटायंस formed by the losing of electron, losing of electron by the element, or we can say that the atom. Okay, means cations are formed by the losing of electron by the element and atoms, or we can say what types of atom, and this is the property of metals. Okay, means cation are formed by the losing of electron by the metals or metal atoms. Okay, so we can say that no need to write this one. ये अच्छा नहीं लिख रहा है क्योंकि इसको हम बेहतर है कि एक ही वर्ड लिख देते हैं. cations are formed by the losing of electron by the metal. जब कोई भी मेटल्स क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. वाई? बाय द मेटल्स. क्यों लॉस करेगा? टू बिकम स्टेबल, टू गेट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या है, सोडियम है. इज इट क्लियर? सोडियम का एटॉमिक नंबर बात करेंगे तो कितना होता है, Z=1 होता है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 281 होगा. सिंपल दोस्तों, समझ के चलना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है. मीन्स इफ देयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल, ओनली 1. अगर if sodium lost this electron, then what will happen? The outermost shell will be complete. After losing one electron, if we remove one electron, then what will happen? The remaining electronic configuration will be what? 2,8. In outermost, how many electrons? 8 electrons. So presence of 8 electron in the outermost, it shows that this atom or this element is stable. Is it clear? Because it completes its octet. क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है. और कंप्लीट होने का मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया. इज इट क्लियर? तो वही कहा गया कैटायंस कौन बनाते हैं, जब कोई मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं. और क्यों करते हैं? टू गेट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो ये क्या बन गया, तो इसके बाद ये वाला अगर बात करते हैं तो हमारा सोडियम आयन बन गया. अभी नहीं आएगा, अब हम इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, अब समझाएंगे, देखो क्लियरली.
सोडियम क्या काम करता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो कितना होता है 281। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट क्लास दैट ओनली मेटल हैज अ प्रॉपर्टी, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड एनी मेटल कैन लॉस 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल। मेटल्स की होती है टेंडेंसी कि आउटर मोस्ट सेल से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों क्या कर सकता है, वो लॉस कर सकता है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, नॉन मेटल की टेंडेंसी में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दीज आर द मेटल्स। मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो कैटायन एनायन की कैटेगरी के बेसिस से देखते हैं तो हमें इससे मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसकी डिस्कस नहीं करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 4 ना लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है। कहेंगे 4 है, कितने और चाहिए आउटर मोस्ट शेल के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन, मोर 4 इलेक्ट्रॉन नीडेड। सो द नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एनी नो वन इवन अ मेटल और नॉन मेटल कांट लॉस और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, 4 कभी भी गेन या लॉस नहीं कर सकता, इसलिए इसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये भी नहीं लेते हैं। नाउ 5, 6, 7 किसी आउटर मोस्ट सेल में इफ एनी एलिमेंट, फॉर एन एग्जांपल दिस वन 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये होगा आउटर मोस्ट सेल, कल ही हमने डिस्कस किया है कि आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2, 3 होंगे तो वो मेटल होगा, और 4, 5, 6, 7, 8 होंगे तो वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा। बट कैटायन और एनायन के कंपैरिजन में बात करेंगे तो यहाँ पर 5, 6, 7 जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, नॉन मेटल होगा, जिसके में 1, 2, 3 है वो मेटल होगा, क्योंकि 5, 6, 7 वाले ही एनायन बनाते हैं, 4 और 8 वाले एनायन नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि 8 का आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीटेड है। 4 वाले की बात करते हैं तो 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, 4 और चाहिए, तो 4 ना ही गेन कर सकता है ना ही इन 4 को लॉस कर सकता है, इसलिए हम ये भी नहीं लेते हैं। नाउ अगर बात करते हैं सोडियम के एटॉमिक नंबर की, देन 281। ओके, 281, इफ दिस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, -1 इलेक्ट्रॉन लॉस, देन व्हाट विल हैपन, Na, सो 28 बन जाएगा, एंड दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन Na+। सो वी कैन से दैट इफ एनी स्पीसीज लॉस इलेक्ट्रॉन then what will form cation, for an example Mg, तो atomic electronic configuration 282, so how many electron in their outermost shell, 2, so मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर सकता है, और आउटरमोस्ट शेल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। लिसन, ये चार्ज किस पर डिपेंड करता है, चार्ज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लॉसिंग इलेक्ट्रॉन बाय एनी मेटल। If 1 electron lost by any metal, then this charge will be only single positive. If any element lost 2 electrons, then what will happen, 2 positive charge. Again Al is 283, and after losing 3 electron, why, because in their outermost only 3 electrons, then what will happen, Al3+ will form, and the last electronic configuration 28. Is it clear? So these are the example of what? These are the example of cations. So cation always formed by losing of electrons. How many electrons? Maximum 3 electrons. Minimum 1 or maximum 3 electrons. Then after losing these electrons, what will form? Cation will formed. Is it clear? And the cation charge depends on the number of losing electron. जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतना ही चार्ज होगा। Is it clear ना? ये मेटल्स के बारे में बताया हमने, क्योंकि मेटल्स ही ऑलवेज इन मीन्स मेटल्स ही क्या बनाते हैं, अभी हमने एक बताया था यहाँ, ऑलवेज ओनली मेटल्स कैन फॉर्म व्हाट, कैटायंस, बट एनायन फॉर्म बाय द नॉन मेटल्स। तो चाहो तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम अगला वाला देखते हैं, हाउ इज एनायन फॉर्म। ये कैटायन वाली बात थी, कैटायन कैसे बनता है। तो दोस्तों हमारे क्लास डेली चलती हैं, डेली कंटिन्यू रहती हैं, तो प्लीज़ डेली हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
आई होप कि आप हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। ओके, नाउ व्हाट, नाउ हाउ इज एनायन फॉर्म्ड, हाउ इज एनायन फॉर्म्ड, क्वेश्चन इज हाउ इज anion formed, how is anion formed means anion always formed means anions are formed by the gaining of electron, by the gaining of electrons by the non-metals, and the condition is same by the non-metals to get the inert gas configuration, inert gas का मतलब दोस्तों नोबल गैसेज है, ग्रुप 18 में जो होती हैं, ग्रुप 18 में जो गैसेज होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ओके, हाँ, तो दोस्तों बात आती है इसमें सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करता है, हमें पता है कि नॉन मेटल्स होते हैं। So we have already know that non-metals are what? Non-metals are what? Whose outermost electron 5, 6, 7. Only those elements or those non-metals having 5, 6 or 7 electron in their outermost shell. So only these non-metals can participate to form a negative ion or to form the anions. Is it clear? Now, for an example is what? Cl. Is it clear? Cl is the electronic configuration 287. Okay na? 287 means 7 electron in the outermost shell, 7 electron. So 7 electron is not possible to lose 7 electron. पॉसिबल ही नहीं है 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाना। तो क्या करेगा ये, इसके आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नीडेड? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन नीडेड। If a chlorine atom gain 1 electron, then its outermost shell, then the outermost shell of chlorine will be completed, or we can say that inert gas configuration achieved. Now plus 1 electron. If 1 electron is added, then what will happen? 2, 8, 8. बिकॉज 7 था और 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 8 हो गए, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन इन दिस कंडीशन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन दिस एटम व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन देन टू फॉर्म द एनायन नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड इज द व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज द 286, no 26 only, 26 because the atomic number of oxygen is 8. Now after gaining how many electrons in the outermost? 6 electrons. So it needs 2 more electrons to complete its octet. So it also gained 2 electrons, then 6 or 2, 8 electrons. Now the electronic configuration 2, 8. And now oxygen, बताओ यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया था तो सिंगल चार्ज था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव गेन करेगा तो कितना चार्ज हो जाएगा? 2 चार्ज हो जाएगा। Okay, is it clear? Okay, now third one is the nitrogen. Okay, nitrogen is the 2, 5 electronic configuration. Then कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल के लिए? 5 है, 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। देन फॉर्म n, ये हो जाएगा 2, 8 हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। नाउ यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस। Is it clear? So we can say that the name of this compound is the nitride ion. This one is the oxide ion and this one is the chloride ion. Chloride ion. क्लियर? तो एक बार वो बता देते हैं कि एनायन जो बनेगा वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों को गेन करके बनता है। जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना ही इस पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। लॉस करेगा तो पॉजिटिव और गेन करेगा तो निगेटिव। 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2, 6 to 8 होकर क्या बना लेगा? O2 माइनस बना लेगा, ऑक्साइड आयन। 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। आई थिंक ये दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप कि दोस्तों अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। If you are clearing your concept, then please subscribe my channel and support us. Okay, I hope you will understand and support me and share among your friends, relatives and the students also. Okay दोस्तों,
आज की क्लास बस इतनी ही थी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।